Okay, so resistive circuits. So पहले let's just look at some few definitions. उसके बाद फिर हम देखेंगे कि resistive circuits क्या होते हैं. So all materials resist the flow of current, even copper. ठीक है, copper also resists the flow of current. It's just कि उसकी resistivity बहुत ही minute होती है. लिहाजा we basically consider it as a pure conductor. So resistance is usually represented by the variable R. Obviously, we know that. Depends on geometry and resistivity of the material. So copper has this resistivity. अच्छा, resistivity जो है ना ohm meters में होती है. It is represented by rho here. ठीक है. And copper की resistivity इतनी है, lead की इतनी है. ठीक है. तो in fact जो lead की है वो भी बहुत कम है. As you can see, e to the power -8. ठीक है. A cylinder of length L and cross sectional area A has a resistance R equals rho L upon A. तो resistance जो है ना वो depend करती है length of the conductor के ऊपर भी. For instance, if this is your conducting wire, तो जितनी ज़ाहिर बात है लंबी conducting wire होगी उतनी उसकी resistance भी होगी. इसी तरह से A is the cross sectional area. क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया है फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो. सो दिस इज R इक्वल्स रो L अपॉन A. एक्चुअली स्टार्ट हो गई है रिकॉर्डिंग, लोकली रिकॉर्ड होती है, स्टार्ट हुई है. मैं टीम्स पे ऊपर नहीं करता हूँ रिकॉर्डिंग. उसकी वजह सिंपली ये है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का अगर कोई इशू आता है तो रिकॉर्डिंग भी अफेक्ट हो जाएगी. So R is the resistance, rho is resistivity, L is the length of the cylindrical material in meters, A is the cross-sectional area in meters square. The meter divided by meter square, meter inverse हो जाएगा और rho जो है ohm meter है, meter into meter inverse cancel out हो जाएगा, you will be left with ohm. So R के जो units हैं they are ohms. अच्छा, resistivity को अगर मज़ीद डिटेल में देखें तो rho is just it's basically 1 over n q mu n, जहाँ पे n is the number of free electrons per unit volume. Mu is the mobility, that is measure of the ease with which free electrons drift inside a certain material under the effect of a given field, and Q is electron charge. So घूम फिर के जो resistivity है at the end of the day it basically just depends on n and mu n. Q is constant, तो n number of free electrons per unit volume एक certain material में कितने होते हैं और mu n which is the mobility वो कितनी होती है. Again ये device physics है, इसकी डिटेल्स में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ इट्स क्वाइट क्लियर कि कंडक्टिविटी जो है विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी, इट्स गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू n विच इज़ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड म्यू n विच इज़ द मोबिलिटी, एंड द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैन बी thought of as this q which is basically the electron charge. Simple सा न्यूमेरिकल है. A copper wire having length L 10 centimeter and S which is the cross sectional area 1 millimeter square carries a current of 1 ampere. अच्छा, अब यहाँ पे A से denoted नहीं है, S से denoted है, but again we can use contextual reasoning. हम देख सकते हैं कि context it talks about resistance and resistivity. वहाँ पे हमें A चाहिए फॉर्मूला में, यानी the cross sectional area, and millimeter square is clearly the units of A area. तो assuming basically number of free electrons भी given है, resistivity भी given है, find the resistance of the wire. So the resistance is rho L upon A, या A की जगह अब यहाँ पे S से हम नोटेशन हमने यूज़ कर रहे हैं, तो वो बेसिकली यहाँ पे हमें इस तरह से मिल जाता है. अच्छा, इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो L है that is given to be 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब है 10 into 10 power minus 2 meters. ठीक है, तो आपने हमेशा SI यूनिट्स में चीज़ को कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो दिस शुड बी 10 into 10 power minus 2 meters. इसी तरह से क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, सो मिलीमीटर स्क्वायर है 10 power minus 3 into 10 power minus 3, because 1 meter is 10 power minus 3, 1 millimeter is 10 power minus 3 meters. So इसको भी हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. ठीक है, बिकॉज दोज आर द SI यूनिट्स. तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. ठीक है, अगर किताब में कुछ डायरेक्ट हुआ है तो ज़ाहिर बात है उन्होंने वो डायरेक्ट इसलिए किया हुआ है क्योंकि स्टेप वाइज करें तो वो चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं. But try to do it in a detailed step-wise manner. Don't jump steps. अगर आप जंप करेंगे तो गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है, असल में एंड में यूनिट्स इसलिए निकालना मुश्किल हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर में है, कुछ मिलीमीटर में है. अगेन ये जो रो गिवन है ये ओम सेंटीमीटर है, हालांकि ओम मीटर होना चाहिए. तो बेसिकली इट्स जस्ट नॉट जस्ट ईजियर बट मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड कि इसको आप 10 into 10 power minus 2 कर दें, इसको 10 power minus 6 कर दें, इसको 1.7 into 10 power minus 6 into 10 power minus 2 कर दें,
और फिर अपना हमारा जो फॉर्मूला है वो हम प्लग इन करें तो एट द एंड यू विल गेट 1.7 इंटू 10⁻³ ओम्स या 1.7 मिली ओम्स। अगर हम डायरेक्टली प्लग इन करेंगे तो जो एक सबसे पहले तो जो वैल्यू आएगी वो इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम एज 1.7 मिली, इट्स गोइंग टू बी सम वेरी जिबरिश वैल्यू बिकॉज वी हैव नॉट यूज्ड द प्रॉपर यूनिट्स। ठीक है, जब प्रॉपर यूनिट्स यूज करेंगे तो फिर वैल्यू आती है 1.7 मिली, जिसको हम लिख सकते हैं 1.7 इंटू 10⁻³ ओम्स या मिली ओम्स। ठीक है, क्योंकि ओम्स ऐसा यूनिट है, मिली इज जस्ट द प्रीफिक्स। ठीक है, इसी तरह से सेंटी इज जस्ट द प्रीफिक्स, द यूनिट इज मीटर। ठीक है, तो आपने यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ समझ में आती है। अच्छा, द वोल्टेज वी अक्रॉस द वायर, तो बेसिकली हमें रेजिस्टेंस पता चल गई वायर की, करंट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि जी 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो वी कैन जस्ट यूज V इक्वल्स आर आई इक्वल्स 1.7 इंटू 10⁻³ 1.7 मिली वोल्ट्स। इसी तरह से द इलेक्ट्रॉन फील्ड इनसाइड द वायर, सो E इक्वल्स V अपॉन L। अगेन ये फॉर्मूला हमने ऐसा पढ़ा नहीं है सर्किट एनालिसिस पे और ना ही पढ़ना है, इट्स बेसिकली फ्रॉम यू नो फिजिक्स। तो अकॉर्डिंगली हमने सिंपली प्लग इन करनी है वैल्यूज़ और आउटपुट हमने कंप्यूट करना है। द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी म्यू, तो म्यू जो है, जिस तरह से हमें रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स 1/n म्यू क्यू था, इसी तरह से म्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं रीअरेंज करके फॉर्मूला, और वो हमने फाइंड आउट किया है। अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट यूनिट्स। अल्टीमेटली जैसे एक हमें आंसर मिला है 7.34 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, इसको फॉर सम और द अदर रीजन दे हैव कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर्स पर आवर, बट यू नो इट डजंट रियली मैटर। यानी मीटर्स पर सेकेंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट्स, अगर आप मीटर्स पर सेकेंड में लाएंगे दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट, अनलेस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है कि जी कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर्स पर आवर और सेंटीमीटर्स पर सेकेंड और व्हाटएवर। लेकिन लिखने में 26.44 सेंटीमीटर्स पर आवर इट मेक्स इंटुइटिव सेंस, सो मे बी दे यू नो डन इट लाइक दैट। Okay, some simple concepts and assumptions about resistances. We will always measure resistance in ohms. Ohms are denoted by the Greek letter omega. Examples are 50 ohms, 1 kilo ohms, and 2.5 mega ohms. Acha, you know, some very obvious problems that I can foresee because of the fact that we are in distance learning. Lecture जो component है, जो theory वाला part है पढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर इतना issue नहीं है। इसी तरह से what Madam Tabinda would be doing is basically teaching you the lab component in using a software called Multisim. So it's a simulation package that you can use to simulate, to basically draw your circuits on the computer and simulate them. So that is all fine. Acha, by the way, somebody's mic is on, so you know, please turn it off. So please turn on your mics only when you need to, you know, speak up, like ask a question or interact with me, क्योंकि otherwise एक noise आती है। अच्छा, तो what I was saying is that कि labs जो है ना हमारी multisim पे जा रही हैं और you will be able to simulate them on the computer, तो that is all fine। लेकिन थोड़ा सा बस issue ये आता है कि hands on जो आपका काम है ना वो सफ़र करेगा, and because this is the very first course, तो it's यानी पर्सनली यस आई फील कि थोड़ा सा एक यू नो इस तरह इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट अगेन पूरी दुनिया में हो रहा है तो वी कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। वैसे आफ्टर अ फ्यू लैब्स और सो मैं वैसे यूजुअली जो है ना स्टूडेंट्स को एनकरेज करता हूँ कि वो अपना कुछ इक्विपमेंट ले लें, जिसके अंदर एट द वेरी लीस्ट एक डिजिटल मल्टीमीटर, एक ब्रेडबोर्ड, कुछ जंपर वायर्स और कुछ बेसिक से कॉम्पोनेंट्स जैसे रजिस्टर्स हैं, LEDs हैं, इस तरह की कोई चीज़ें ले लें। और हाँ, अब आपके पास जो लैब इक्विपमेंट जैसे ऑसिलोस्कोप है, फंक्शन जनरेटर, ये चीज़ें नहीं होती हैं, बट इसका एटलीस्ट पावर सप्लाई जो है वो फिर भी आप ले सकते हैं। इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, आई वुड एनकरेज यू टू डू इट। एंड अगर मैं अपनी बात बताऊँ मिसाल के तौर पे, तो व्हेन आई वाज योर एज और व्हेन आई वाज यू नो डूइंग माय इंजीनियरिंग, तो मैं सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि यू नो क्वाइट अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स एज वेल, हम लोग जो है वो अपने घर पे ही हमने कुछ चीज़ें ली होती थी, इवन पावर सप्लाई भी होता था। और पावर सप्लाई इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि आप यू नो एक टिपिकल अडॉप्टर ले सकते हैं जो कि एटलीस्ट आपको 5 वोल्ट दे सकता है। तो यानी चीज़ों के तोड़ हैं, आप कर सकते हैं इफ़ यू वांट। इट्स नॉट लाइक कि बिल्कुल ही आप यानी यू नो बेबस हो गए हैं क्या, बट यू कैन स्टिल डू थिंग्स।
तो अभी क्योंकि बेसिक सर्किट एनालिसिस है, अगेन आई वुड एनकरेज यू टू गेट सम इक्विपमेंट ऑन योर ओन. अब चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर भी हो जाती हैं. ऑनलाइन ई कॉमर्स इज़ क्वाइट प्रिवेलेंट इन पाकिस्तान, पहले नहीं होता था. तो यू डोंट नेसेसरली हैव टू विजिट द मार्केट एज वेल. और इवन अगर यानी यूनिवर्सिटीज़ वर ओपन और सूरत हाल नॉर्मल होती तो भी आई वुड हैव रिकमेंडेड यू टू डू दिस, or at the very least I would have asked you to at least try and buy your own digital multimeter. क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने की हुई हैं, सीनियर्स ने भी की हुई हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि दिस इज समथिंग नॉट नॉर्मल, बट हम वी डू ऑल दिस एट वी यूज टू डू ऑल दिस एट होम एज वेल. इसी तरह से आगे आपने डिजिटल लॉजिक पढ़ना है, उसके लिए भी हम ये सारी चीज़ें घर पे करते रहे हैं. एनीवे, सो मूविंग ऑन. Conductors, example wires, have very low resistance, typically less than 0.1 ohms, that can usually be neglected. That is, we will assume wires have zero resistance. तो ये जो हम assumption है ये circuit analysis में लेंगे, ठीक है. लेकिन in practice we should at least understand के यानी at least appreciate the fact कि एक minimal resistance फिर भी होती है. Insulators, example air, have very large resistance, greater than 50 meg, that can usually be ignored, omitted from circuit for analysis. Resistors have a medium range of resistance and must be accounted for in the circuit analysis. अच्छा, एक तो हो गया कंडक्टर्स, एक हो गया इंसुलेटर्स. बीच में क्या चीज़ आ गई? रेजिस्टर्स. तो इनकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है, and of course it must be taken into account. Conceptually, a light bulb is similar to a resistor. ठीक हो गया. Properties of the bulb control how much current flows and how much power is dissipated. So depending on the यानी बल्ब की प्रॉपर्टी यानी कि वोल्टेज होती है टिपिकली, अगर आप मार्केट में जाके लें तो वोल्टेज से मराद यही है कि कितनी करंट इसके थ्रू फ्लो करे, कितना करंट फ्लो करेगा और कॉन्सिक्वेंटली ये कितनी हीट डिसिपेट करेगा. क्योंकि जो बल्ब है या बेसिकली बिल्कुल बल्ब की तरह एक इलेक्ट्रिक हीटर अगर मैं कहूँ, या एक इस्त्री की एग्जांपल ले लेते हैं, एक आयरन जो है, क्लोज आयरन जो होती है, इनका काम सिर्फ ये होता है कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इनटू हीट एनर्जी. इसी तरह बल्ब जो है कन्वर्ट्स इट इनटू लाइट एनर्जी एंड कॉन्सिक्वेंटली लाइट के साथ हीट भी आ रही होती है. सो basically they dissipate power. That is what they do. It is emitted as light and heat. Okay, then we have Ohm's law. We need to know how the circuit through and voltage across the device, in other words the resistor, are related. Many materials have a complicated non-linear relationship, including light bulbs. So typically जो relationship है बहुत सारे materials की उस तरह की होती है. अब ये form of the function exactly है क्या, we don't really know. For different materials it could be different. But those materials with a linear relationship satisfy Ohm's law. So V equals plus minus Mi. M is the proportionality constant. For resistors, it's just the resistance. And Ohm's law therefore reduces to V equals plus minus IR. And sign plus minus is determined by the passive sign convention. So typically क्या मतलब resistors हैं ही एक passive device. इसने हमेशा power को absorb करना है, मतलब electric power absorb करना है और heat के फॉर्म में पावर को डिसिपेट करना है. तो इलेक्ट्रिक पावर क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है, लिहाजा फॉर रेजिस्टर्स इट्स गोइंग टू बी V इक्वल्स प्लस IR, राइट. तो अगर इस तरह की रिलेशनशिप है करंट और वोल्टेज में तो ओम्स लॉ विल अप्लाई, और अगर इस तरह की रिलेशनशिप है तो ओम्स लॉ क्लियरली डज नॉट अप्लाई बिकॉज इट्स अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप. अच्छा, अब recall that relationships between current and voltage are sign sensitive. Then we use passive sign convention, current, which basically states that current enters the positive terminal of an element. इसको हम दूसरी तरह इस तरह भी state कर सकते हैं कि if the current is entering, यानी whichever terminal the current is entering, it should be assigned the positive sign. ठीक है. So if PSC is satisfied, V equals IR. If it is not satisfied, V equals minus IR. तो यहाँ पे जो केस है, यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल पे और लीव हो रहा है नेगेटिव से. सो क्योंकि पॉजिटिव पे एंटर हो रहा है लिहाजा V इक्वल्स प्लस IR. यहाँ पे करंट नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर हो रहा है, सो V इक्वल्स माइनस IR. यहाँ पे करंट पॉजिटिव से एग्जिट हो रहा है, इन अदर वर्ड्स नेगेटिव में एंटर हो रहा है, तो V इक्वल्स माइनस IR. यहाँ पे करंट पॉजिटिव में एंटर हो रहा है तो V इक्वल्स प्लस IR. ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी और भी क्लियर हो जाएगी थोड़ी सी देर में. एक हम एग्जाम्पल करेंगे तो इंशाल्लाह. लेट मी सी कि वो एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं होती है. ये चीज़ ना स्लाइड नंबर 11 पे हम क्लियर करते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में, ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी. So other very simple equations that can be derived from Ohm's law are given here. I equals V over R and power is plus minus VI. Therefore power is V अपनी जगह पे, I की जगह हमने रखा V over R, तो V square upon R. अच्छा, इसके लिए हम रेजिस्टर के लिए हमेशा पॉजिटिव पावर लेंगे क्योंकि रेजिस्टर ऑलवेज एब्जॉर्ब्स पावर.
क्योंकि इट्स अ पैसिव डिवाइस. जो एक्टिव डिवाइस है फॉर इंस्टेंस बैटरी और अ चार्ज कैपेसिटर और इंडक्टर दैट इज एक्चुअली डिस्चार्जिंग. तो जब वो डिस्चार्ज हो रहे होते हैं एट दैट मोमेंट वो पावर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कर रहे होते हैं सर्किट को. लेकिन जब वो चार्ज हो रहे होते हैं उस वक्त वो पावर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं. लेकिन सर रेजिस्टर्स के केस में इट्स ऑलवेज गोइंग टू एब्जॉर्ब पावर, देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. सिमिलरली दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. So resistors cannot produce power, so the power absorbed by a resistor will always be positive. और ohms की definition है 1 volt per ampere. We all know that. अच्छा, conductance is basically the opposite of resistance, inverse of resistance 1 over R. ठीक है, I over V. The units are Siemens और mhos. ठीक है, इस तरह से भी इसको हम represent करते हैं. 1 Siemens is 1 mho is equal to 1 ampere per volt. ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से हमने रेजिस्टेंस के केस में यानी पावर डिसिपेशन और ओम्स लॉ को रेजिस्टर के आर के टर्म्स में लिखा हुआ है, इसी तरह हम जी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. बड़ी सिंपल सी इक्वेशंस है. अच्छा, power dissipation. Resistors absorb energy and convert it into heat. Ohmic heating exploited on purpose in home appliances such as ranges, cooking range मतलब electric range जो होता है, गैस वाला नहीं. Toasters, hair dryers, irons and electric heaters. So all these devices, what these devices basically do, they perform ohmic heating. In other words, जो भी एक डिवाइस की रेजिस्टेंस होती है उसके अकॉर्डिंगली उसको जब आप इलेक्ट्रिक सब करंट प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड करेंगे, इट्स गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू हीट. एंड अनइंटेंडेड ओमिक हीटिंग, यहाँ पे तो इंटेंडेड है मतलब इट्स ऑन पर्पस, लेकिन अनइंटेंडेड ओमिक हीटिंग भी होती है इन सर्किट्स कैन लीड टू इनटॉलरेबल टेम्परेचर राइज एंड कॉज डैमेज टू कंपोनेंट्स. हेंस द यूज ऑफ कूलिंग फैंस एंड हीट सिंक्स. सो फॉर इंस्टेंस आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर ओमिक हीटिंग हो रही होती है और अनइंटेंडेड है, मतलब जब प्रोसेसर रन हो रहा है या कोई अगर आप इफ़ यू आर इनटू 3D गेम्स, कंप्यूटर गेम्स, तो बेसिकली जब आप खेलते हैं तो आपको पता है कि आपका जो GPU है वो बहुत ज़्यादा नंबर क्रंचिंग कर रहा होता है. उसकी वजह से इट्स गोइंग टू गिव ऑफ हीट बिकॉज इट्स टेकिंग अप ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. एंड जब बहुत ज़्यादा पावर आप लेंगे, जाहिर बात है जब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा सर्किट में से तो फिर डेफिनेटली ज़्यादा हीट डिसिपेट होगी. हेंस द यूज ऑफ कूलिंग फैंस एंड हीट सिंक्स. तो इससे एक जोक भी है, याद आता है, व्हेन यू टॉक अबाउट द पेंटियम 4 फॉर इंस्टेंस. पेंटियम 4 जो था एक ज़माने में बेसिकली अराउंड 2004-05 ही रिलीज़ हुआ था. तो उसके बारे में एक जोक होता था कि इफ़ यू हैव अ पेंटियम 4 इन योर हाउस यू डोंट रियली नीड एनी हीटर्स, क्योंकि वो इतना गर्म होता था. एनीवे, इट्स जस्ट अ जोक. वॉटेज रेटिंग. मैक्सिमम पावर दैट अ रेजिस्टर कैन सेफली डिसिपेट बिफोर इट इज़ डैमेज्ड ड्यू टू ओवरहीटिंग. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि टिपिकली जो रेजिस्टर्स आपको मिलते हैं वो एक सर्टन वॉटेज रेटिंग के साथ मिलते हैं. ठीक है, तो 1/4 जिसको क्वार्टर वॉट भी कहते हैं, ये मिसाल के तौर पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है थ्रू होल. इसको हम थ्रू होल क्यों कहते हैं? Does anybody want to tell us why this is called through hole? हाँ जी, this is a question for the class. Why is this component called a through hole component या through hole resistor? Because it's a resistor. जी बिल्कुल ऐसा ही है. So what you see here is basically a printed circuit board. इसके ऊपर एक ग्रीन कलर की इसको हम क्या कहेंगे, इमल्शन कहेंगे या जो भी कहेंगे. ये एक इंसुलेटर है इसके ऊपर जो ग्रीन कलर का इमल्शन है. एक्चुअली ये जो PCB है नीचे, इसके अंदर कुछ आपको जैसे ये एक ट्रैक दिख रहा है, ये नीचे से ना कॉपर एचिंग हुई हुई है. सो इट्स अ कॉपर ट्रैक. कॉपर बेसिकली एक्चुअली जो PCB का बोर्ड होता है वो सारा का सारा कॉपर होता है, लेकिन उसके ऊपर कहीं कहीं इंसुलेशन हम लगा के एक सर्किट को एच करते हैं. और एक थ्रू होल कंपोनेंट जो है वो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे दोनों होल्स के थ्रू क्योंकि इंसर्ट हुआ हुआ है, सो इट्स अ थ्रू होल कंपोनेंट. और ये वही कंपोनेंट है जो कि हम हमारे ब्रेड बोर्ड्स पे हम यूज़ करते रहे हैं. लेकिन इसके अलावा सरफेस माउंट डिवाइसेस भी होती हैं. तो फॉर इंस्टेंस दीज रजिस्टर्स 37 एंड 36 आर सरफेस माउंट रजिस्टर्स. तो रजिस्टर्स इस शक्ल सूरत में भी आते हैं, इस शक्ल सूरत में भी आते हैं. ठीक है, अच्छा, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है इसकी वैसे जो लेग्स हैं, जो लीड्स हैं, ये आपको देख के भी लग रहा होगा कि क्योंकि हमने जो लीड्स जो यूज़ किए हैं लैब के अंदर, तो आपको याद होगा कि उसकी लीड्स काफ़ी पतली होती हैं. तो इसकी लीड्स मोटी हैं और इसका अपना साइज़ भी मोटा है. इससे हमें पता चल रहा है कि दिस इज़ नॉट ए क्वार्टर वॉट रजिस्टर, क्योंकि जो आप लैब में यूज़ कर रहे होते हैं वो क्वार्टर वॉट रजिस्टर्स होते हैं. सो दिस इज़ प्रॉब्ली हाफ वॉट रजिस्टर. ठीक है, यानी इट कैन सर्वाइव 0.5 वॉट्स. अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लूँ. क्वार्टर वॉट का मतलब ये है
कि फॉर इंस्टेंस अगर एक रेजिस्टर है उसके अक्रॉस 1 वोल्ट्स आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम जो करंट उसके थ्रू फ्लो कर सकता है इफ इट्स अ क्वार्टर वॉट रेजिस्टर वो कितना है? अगेन अ क्वेश्चन फॉर द क्लास। एग्जैक्टली 250 मिली एम्पेयर या 0.25 एम्पेयर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली करंट जो है इतना फ्लो कर सकता है उसके थ्रू इफ इट्स अ क्वार्टर वॉट रेजिस्टर। अगर तो उसका वोल्टेज आप बढ़ा देते हैं, मिसाल के तौर पे 5 वोल्ट कर देते हैं, तो करंट जो है वो और भी कम उसके थ्रू बेसिकली अलाउड है, ठीक है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जब आप सर्किट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो एक सर्टेन रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आपने अप्लाई करना है, और जाहिर बात है उसकी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि उसके थ्रू करंट कितना फ्लो करेगा। तो जो करंट और वोल्टेज की जो वैल्यूज़ हैं बड़ी कैलकुलेटेड होनी चाहिए एंड दे शुड नॉट एक्सीड द वोल्टेज रेटिंग ऑफ ए या द पावर रेटिंग ऑफ ए रेजिस्टर। अच्छा, इन प्रैक्टिस क्वार्टर वॉट का मतलब है 0.25 वॉट्स, यस, बट इन प्रैक्टिस long before this rating is achieved, your resistor is going to start dissipation, start a considerable amount of dissipation, और वो पहले ही जल जाता है। जल जाने का मतलब ये है कि बेसिकली उसके थ्रू जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है, और कॉन्सिक्वेंटली जल जाने का मतलब ये है कि वो आइदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है या वो ओपन सर्किट हो सकता है। दोनों केसेस में इट्स नॉट गुड फॉर योर सर्किट। खासकर शॉर्ट सर्किट में तो बिल्कुल भी गुड नहीं है। ओपन सर्किट में चलो एक सर्किट डिस्कनेक्शन हो जाती है, लेकिन कोई ऐसा नुकसान नहीं हो सकता है। तो एनीवे आपने कैलकुलेट करके ही करंट उसके थ्रू फ्लो करना है। अच्छा।